Thank you so much, Dr. Tanaya, for joining us at Impact Makers Conclave 2024 at ABP Live. And this is our second session for the day, Women, Health and Fertility, breaking the silence around reproductive wellness. And who better to have than you, who has been breaking barriers, talking about reproductive health, talking about things that people think are taboo, sexual wellness. You've been talking about all that. And I think we all need to understand that no questions are taboo, right? Yeah, I think we have to say bye to taboos and say hi to embracing our bodies and learning more about them. And Dr. Tanaya is a very fearless and a very impactful voice on the internet when it comes to sexual health, wellness, understanding your own body. And it's not just girls, women, it's actually also men who are also getting educated. There's so much that we don't know. So you're doing a fantastic job tackling all these questions about sexual wellness, reproductive health. How did you begin this journey? It was really funny actually. So I started using a menstrual cup. Now this is a device that wasn't very popular in India when I started using it because I was not living in India. And every time I would come back to India, I would carry I was essentially bringing in commercial quantities of menstrual cups for my friends because everybody wanted to try one. And as it so happens, when everybody is away from their home, their bedroom is turned into a storeroom. Exactly what my mother did. She made my bedroom a storeroom, and my mother's a gynecologist for context. There was a uterus model lying somewhere in a corner somewhere. And I thought, it was World Menstrual Hygiene Day, and I thought a lot of my friends keep asking me about the cup. So I made a little explainer video about how a cup works and how much more comfortable it makes your period, and how you can simply go on and do whatever you want in your life when you're on your period, which is not the case usually. And I put that on my personal Instagram account, and my friends really, really loved it, and they encouraged me to make that a public thing. And that's basically how I started. I just wanted to cupvert the whole world, essentially. And you've got some 1.7 million followers on Instagram. A lot of people are watching your content, learning. And there's also, you've made the content so relatable. People understand everything so well. We don't have to be a science student to understand. And I also see there's a fair bit of acting that you do. तो एक आई थिंक एक्टर बनने का भी एक सपना है जो शायद पूरा हो रहा है डॉक्टर होने के साथ नहीं बस आई थिंक अपने ऊपर हंसने में जो रिलैक्सेशन आ जाता है और सामने वाला इतना एट ईज हो जाता है आई थिंक दैट वाज द अंडरलाइंग आइडिया सबको ईज पे रखना हाँ आई थिंक एंड यू डू अ वंडरफुल जॉब ऑफ दैट नाउ आई वांट टू नो कि जब सेक्सुअल हेल्थ की बात होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात होती है तो काफी शॉकिंग क्वेश्चंस भी आते होंगे सो व्हाट इज द मोस्ट शॉकिंग क्वेश्चन दैट यू हर्ड दैट वी आर वेरी क्लूलेस अबाउट आवर बॉडीज राइट विद सम ऑफ द अदर थिंग्स सबसे शॉकिंग क्वेश्चन क्या आया होगा सबसे शॉकिंग तो डेली आता है रोज मेरी और मेरी टीम के होश उड़ जाते हैं कि लोगों को ऐसे सवाल कैसे पूछने पड़ रहे हैं बट एक बार आई थिंक वन दैट स्टैंड्स आउट अ लॉट इज मैं एग फ्रीजिंग के बारे में काफ़ी बात करती हूँ आई फ्रोज माई एग्स अर्लियर दिस ईयर एंड उसके बाद एक साउथ बॉम्बे की काफ़ी पॉश सी लड़की आई मेरे पास एंड आई थिंक शी डिडंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एग फ्रीजिंग और उसने आके धीरे से मुझसे पूछा मुझे ना अपने स्पर्म फ्रीज करने हैं मैंने कहा बहन क्या बात कर रही हो शी इज़ लाइक हाँ मुझे करने हैं कैसे प्रोसीजर होता है तो मैंने आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड इफ़ यू नो देयर इज़ अ ट्रांस आइडेंटिटी हियर या कुछ बट उसको पता ही नहीं था कि लड़कियों में स्पर्म नहीं होते हैं लड़कियों में एग्स होते हैं एंड दैट इज़ द फाउंडेशन दैट नॉट द फाउंडेशन दैट इज़ द बेस लाइन ऑफ द नॉलेज अबाउट आवर बॉडीज वी ऑल नॉर्मली कैरी ये बहुत ही कॉमन सवाल है ये कोई एक अनोखी सिचुएशन नहीं थी कि उस लड़की ने आके मुझसे ऐसा पूछा वेल आई होप शी गॉट हर आंसर्स आप एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं अपने ऑडियंस के साथ विच इज़ 2 truths and a lie तो क्या हम अपने ऑडियंस के साथ ट्राई कर सकते हैं डू यू वांट टू गिव आउट सम ट्रूथ्स एंड अ लाई एंड हम चेक करते हैं कि हमारा ऑडियंस लाई डिटेक्ट कर सकता है कि नहीं आर यू गाइज रेडी फॉर दिस विल यू प्ले ऑलराइट ओके या 2 truths and a lie ओके सो आई विल गिव यू स्टेटमेंट ए बी एंड सी ठीक है इसमें जो भी लाई है आप वो वाला स्टेटमेंट एक साथ स्क्रीम आउट करना व्हेन आई आस्क यू स्टेटमेंट ए यू मेंस्ट्रुएट फॉर ऑन एवरेज 7 years इन योर लाइफ पूरी ज़िंदगी में इकट्ठा करके करीब 7 साल को हमें पीरियड्स होते हैं अगर हम सारे पीरियड्स एक साथ जोड़ दें स्टेटमेंट बी men make 1500 sperm per second on average अगर एक औसतन रूप से हम पर सेकेंड देखें तो आदमी 1500 स्पर्म बनाते हैं ऑन एवरेज स्टेटमेंट नंबर 3
In a rare condition, you can have, statement number C, sorry. In a rare condition, you can have 3 ovaries. Which is the lie? There's a lot of A's and C's and B's. Anybody saying B? Okay. Anybody for A? And C? This audience is more well-read than I had imagined. But yes, you don't have 3 ovaries. That never happens. But yes, you do menstruate for an average of 7 years in your life collectively. And men make, on average, 1,500 sperm per second. Well, a lot of women are learning new things. What about men? What are those things that men also need to remember and learn about their own bodies and about female bodies as well? What do you think that message needs to be given? What I'm seeing that I'm really liking on social media these days is a lot of men are opening up about body image issues. हम लड़कियों की body positivity के बारे में बहुत बात करते हैं, but लड़कों को उतना ही shame किया जाता है diversity of body के लिए, जबकि लड़कियों में तो भाई fat acceptance बहुत अच्छे से आ गई है, skinny acceptance बहुत अच्छे से आ गई है. आजकल थोड़ा बहुत conversation आगे बढ़ रहा है. More and more men are talking about embracing their bodies the way they are, which I think has been a wonderful change. पिछले 5 सालों में जो मैंने ही देखा है social media में. I wish they would learn more about periods. अभी भी periods को ऐसे बोला जाता है. मेरे काफ़ी सारे मैं इलाहाबाद से हूँ, तो मेरे इलाहाबाद के काफ़ी सारे दोस्त बोल देते हैं, अरे उनको गर्ल्स प्रॉब्लम हो गई है. अब ये गर्ल्स प्रॉब्लम नहीं होती है. पीरियड एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होती है जो हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी को होती है. ये गर्ल्स प्रॉब्लम वाला कॉन्सेप्ट, एंड ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ इलाहाबाद में ऐसी बात होती है. हर जगह यही हेजिटेशन है, यही हिचकिचाहट है लोगों में कि एक बहुत ही सिंपल फिनोमेना जो बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करता है, एंड नॉट जस्ट इम्पैक्ट करता है, लाइफ में काफ़ी अड़ंगा डालता है एक्चुअली. उसके बारे में हम खुल के बात क्यों नहीं कर पाते? जब आप कुछ अलग करते हैं, स्पेशली इंटरनेट पर, यू चूज अ टॉपिक जो यूजली बात नहीं करते हैं लोग, टैबू टॉपिक्स, तो आई एम श्योर ट्रोल भी बहुत किया जाता होगा. वाइल यू आर अ वेरी इम्पैक्टफुल वॉइस ऑन द इंटरनेट, आई एम श्योर बहुत ट्रोलिंग होती होगी. हाउ डू यू टैकल दैट? शुरू में बहुत रोई बहुत एंग्जाइटी हुई, थेरेपी शुरू कर दी कि ऐसे कैसे बोल दिया सामने वाले ने, ऐसे कैसे लिख दिया. पर फिर आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी अपने थेरेपिस्ट से वो ये थी कि जिन लोगों से मैं कॉम्प्लीमेंट्स नहीं लेती उन लोगों से मैं क्रिटिसिज्म क्यों ले लेती हूँ. ये एक चीज़ सीखने की थी. जो फेसलेस इंसान है उसका कॉम्प्लीमेंट लेने में मुझे बड़ा मतलब आई थिंक लड़कियों में जनरली प्रॉब्लम होता है. हम कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करने में बहुत डोलमलोल होते हैं कि अरे ऐसे कैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ कमेंट करे तो वो जिंदगी भर याद रहता है. क्रिटिसिज्म फट से एक्सेप्ट हो जाता है. यहाँ तक ठीक है. एक्चुअली हाल में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा डेथ थ्रेट्स आने लगे हैं, रेप थ्रेट्स आने लगे हैं. जस्ट बिकॉज मैं सेक्स एंड सेक्सुअलिटी की बात करती हूँ तो लोग कुछ भी बोल देते हैं. वो सब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. कभी कभी साइबर क्राइम की भी हेल्प लेनी पड़ती है. बट मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ टाइप का समझ लिया. That never made you stop what you do. Maybe gave you a little more confidence to carry on what you do. I don't think it gave me any more confidence, but what it definitely did was that मतलब बहुत सारी कहावतें मेरे सामने प्रूव हो गई कि जो मम्मी पापा बड़े बड़े ज्ञान दिया करते थे बचपन में वो सब प्रूव हो गया कि हाँ बोलने वाले बोलते हैं, कुछ करते नहीं हैं, और करने वाले उठ के करते हैं. तो ये सब थोड़ा फिलोसॉफिकल लेसन काफ़ी बढ़ गया मेरा लाइफ में. So now our audience is fairly young. What would your advice be to the younger generation? काफ़ी बातें हैं जो बोलने से कतराते हैं, uncomfortable होते हैं. So what is your advice? What would you like to tell them? कि कुछ बातें हैं जो बोल देनी चाहिए, सवाल पूछ लेने चाहिए. टैबू हम बनाते हैं टॉपिक को. कोई भी टॉपिक, अभी मैं कल को बालों के बारे में बात करना टैबू बना दूं तो हम एक कमरे में बैठ के हो उसने बाल कटाए हैं ऐसे करके बात करने लगेंगे. मतलब इट्स जस्ट द थिंग दैट वी हैव एडेड दैट अननेसेसरी वेट ऑन टू. तो वो पहली चीज़ ये है कि टैबू वाला कॉन्सेप्ट भूल जाइए. अपनी सेफ स्पेसेस में क्वालिफाइड वॉइसेस को ढूंढिए, उनसे बात करिए, अपने आंसर्स ढूंढिए. बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शरीर के बारे में जानें. नहीं जानते हैं तो गड़बड़ियाँ होती हैं, और हम सब जानते हैं, हमारे सब दोस्तों ने कोई ना कोई कांड किया होता है. दूसरी चीज़, प्लीज़ HPV का वैक्सीन लगवाइए. HPV एक ऐसा वायरस होता है जो बहुत सारे कैंसर्स में इन्वॉल्व होता है, फॉर मैन एंड वुमेन बोथ. 9 years to 45 years हर कोई इस वैक्सीन को लगवा सकता है. अगर आपके घर में 9 to 15 के एज के लोग हैं, दिस इज़ द आइडियल एज टू गेट वैक्सीनेटेड.
एंड आपको आगे बहुत सारे कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, पर्टिकुलरली सर्विकल कैंसर। इंडिया वर्ल्ड का लीडर है सर्विकल कैंसर से डेथ्स में। सर्विकल कैंसर का मतलब ये वाला कैंसर नहीं, यूट्रस के नेक को सर्विक्स भी बोलते हैं। तो यूट्रस का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसमें इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर है इंडियन रूरल वुमेन में, एंड सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडियन अर्बन औरतों में। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम बहुत सुनते हैं पर इसके बारे में नहीं सुनते हैं। तो प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड। इंडियन मेड वैक्सीन भी आने लगी है अब, वो 4,000 पर नहीं 4,000 पर डोज की आती है। एंड अगर आप और स्ट्रेंथ की चाहते हैं तो वो और भी आती हैं, बट एवरी वैक्सीन यू गेट अगेंस्ट HPV विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द स्ट्रेन्स दैट कॉज कैंसर ऑफ द सर्विक्स। सो आज अगर कुछ भी ना सुनो, आज एक ये चीज़ अपने घर आप साथ में लेके जाओ, then you can make an investment into your health that will protect your life forever. So please bear this in mind. So HPV vaccine, it's best that you get it when you're young, लेकिन वैसे कोई एज नहीं है, even if you're 45 तक 45 तक करवा लेना चाहिए. All right. If you guys don't know about HPV vaccine, you can always follow her. She's given detailed information. क्यों चाहिए, क्यों बिल्कुल इस वैक्सीन को लेना चाहिए, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. ऑडियंस के पास अगर कुछ सवाल है तो अपने सवाल आप सोच लीजिए और माइक आप तक पहुंच जाएगा. तब तक मैं एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ एक और. Somebody asked me this and I think it's a very interesting question. If you had to create a playlist, एक playlist हम बना रहे हैं about different stages of the menstrual cycle. If I had to create a what? You have to make a playlist. Songs for different stages of menstrual cycle. तो आप क्या गाने डालेंगे? शुरुआत किससे करेंगे? वो गाने सैड म्यूजिक होगा, एंग्री म्यूजिक होगा, डेथ मेटल होगा? उस प्लेलिस्ट में कैसे गाने होंगे? I think I'll start with ovulatory phase. जिस टाइम पे हम एग रिलीज कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमारे हार्मोन्स भी बढ़िया होते हैं, हम खुश भी फील कर रहे होते हैं, एवरीथिंग इज ग्रेट. उस समय आएगा आज मैं ऊपर आसमान नीचे. उसके बाद आएगा थोड़े दिन का आपका एक वैसा फेज आएगा जिसमें आपकी बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग टू गेट फर्टिलाइज्ड, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है. तो उस समय कौन सा है, गुमनाम है कोई. किसको खबर कौन है वो. देन नेक्स्ट आएगा मेंस्ट्रुअल फेज विच इज़ द फेज वी ऑल रेड. उसमें थोड़ा डेथ मेटल बजा के ख़त्म कर देंगे. सब साथ में चिल्लाएंगे. एंड देन नेक्स्ट आएगा पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज. उसमें हम थोड़ा ऐसे पियानो म्यूजिक चिल सा बजा सकते हैं. द ओनली रिलैक्स्ड फेज यू हैव इन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. I think that's a good way to understand your cycle as well. आपका म्यूजिक आपके मूड को डिटरमिन कर सकता है. So yes, audience, अगर आपके पास सवाल है, can you please raise your hands? और there, अगर माइक उन तक पहुंच जाए. Can I ask? Good morning, ma'am. I'm your very big fan, and I would like to thank ABP News for giving me this chance. मैम मेरा एक क्वेश्चन था आपसे. लाइक मैंने आपके काफ़ी सारी वीडियोस देखी है रील्स पे, तो आपने एक जगह मेंशन किया था, आई डोंट रिमेंबर, मे बी इट्स अ पॉडकास्ट और इंटरव्यू, दैट जो कर्ड में बैक्टीरिया होती है वी फाइंड इन आवर वजाइना, लाइक हाउ इट्स जस्टिफाई. मैंने बहुत ट्राई किया था उसका आंसर्स ढूंढने के लिए, क्योंकि रील्स में तो मैम कटआउट क्लिप्स मिलता है तो पूरा तो नॉलेज नहीं होता, और एज अ पर्सन अगर मुझे आपसे ये नॉलेज मिले तो आई विल बी ग्रेटफुल. इसका डिटेल्ड आंसर एक्चुअली इस सैटरडे मेरे यूट्यूब पे आ रहा है. मैंने कल ये वीडियो रिकॉर्ड किया है. बट बेसिकली ऐसा होता है कि जो हमारे वजाइना में बैक्टीरिया होते हैं उनको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं. यस मैम. लैक्टो माने मिल्क होता है एक्चुअली, लैक्टेशन. आप कहीं भी लैक्ट का रूट ढूंढेंगे तो आपको ये मिल्क से रिलेटेड वर्ड्स मिल जाएंगे. वजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलाई जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच मेंटेन करते हैं. वजाइना का पीएच एसिडिक होता है एक्चुअली. सिंस आप दही की बात कर रहे हैं, वजाइना और बियर का पीएच सेम होता है. टू add into the interesting facts. एंड ये लैक्टोबैसिलाई बहुत ज़रूरी होते हैं वजाइना के एसिडिटी मेंटेन करने के लिए. इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपके वजाइना की एक इंटरनल आर्मी है. वो आर्मी आपको प्रोटेक्ट कर रही है ताकि इन्वेडर्स ना आ सके. इन्वेडर्स माने यीस्ट इन्फेक्शन, इन्वेडर्स माने बैक्टीरियल वैजिनोसिस, इन्वेडर्स माने गार्डनेला, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं. तो इन्फेक्शन को आने से ये रोकती है और ये बहुत ज़रूरी होती है वजाइना का एसिडिटी मेंटेन करने के लिए. अगर आपका वजाइना का लैक्टोबैसिलस का कंटेंट कम हो गया है, यानी दही वाले बैक्टीरिया कम हो गए हैं, तो आपको वजाइनल इन्फेक्शन होने का रिस्क हाई होता है. इसको हम बैक्टीरियल वैजिनोसिस बोलते हैं जब भी पीएच ऑफ होता है. तो डिटेल में आंसर मेरी बुक में भी मिलेगा, सैटरडे को मेरे यूट्यूब पे भी मिलेगा. थैंक यू सो मच मैम. Thank you so much for that question. Anybody else who has a question? Hello ma'am, this
is Kirti Mishra. I wanted to ask you that what's your advice for girls with PCOS and PCOD? पहली चीज़ PCOS और PCOD एक ही चीज़ होती है. A lot of people will tell you एक डरावना वर्जन है, इसमें रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मेलिटी हो जाएंगी. ऐसा कुछ नहीं होता है. दोनों सेम चीज़ होती हैं. उसको पहले स्टाइन लेवेंथॉल सिंड्रोम बोलते थे जब मेरी मम्मी मेडिकल कॉलेज में थी. मैं मेडिकल कॉलेज में आने लगी तो उसको PCOD बोलने लगे. अब उसको PCOS बोलते हैं. अगले 20 साल में उसका नाम फिर से बदल के मेटाबॉलिक एंडोक्राइन सिंड्रोम होने वाला है, ये भी बता दूँ. तो बेसिकली अगर आप PCOS, अगर आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक छत की तरह समझें तो छत आपके 4 पिलर्स पे सपोर्टेड है. गुड स्लीप, गुड न्यूट्रिशन, गुड एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. लाइफस्टाइल इज द मैनेजमेंट फॉर योर PCOS. PCOS का कोई क्योर नहीं होता है. बहुत सारे लोग अंड प्रोडक्ट्स बेचते हैं मार्केट में बोल के कि इससे 100% PCOS क्योर हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. PCOS आपका मैनेज ज़रूर हो सकता है बहुत सारी चीज़ों से. एंड द ईजिएस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव एंड द मोस्ट सस्टेनेबल इंटरवेंशन इज़ योर लाइफस्टाइल. तो अगर आपको PCOS है तो अपना स्ट्रेस मैनेज करिए, स्लीप अच्छी रखिए, एक्सरसाइज. यू डोंट हैव टू बी फैट टू एक्सरसाइज. एवरीबडी शुड एक्सरसाइज. बेसिक हर दिन 30 मिनट का वॉक भी बहुत है. एंड ईट वेल. Ma'am, Thank you. Sir, we'll come to you, sir. Yes. A question. good afternoon, ma'am. So I have this question. I want to know that today the females are facing the problem of short period length. So how do we, what are the reasons of this problem and how do we tackle the stress which we are gaining through this problem? So 21 to 35 days नॉर्मल रेंज होती है पीरियड लेंथ की. मतलब पीरियड की नहीं, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की. अगर इससे कम या इससे ज़्यादा हो रहा है तो देन इट बी अ ह्यूज नंबर ऑफ इशूज वाई दिस माइट बी हैपनिंग. मोस्ट कॉमनली इट इज़ अ हार्मोनल इशू. सो इट्स एन एंडोक्राइन इशू विच इज़ वाई अगर ऐसा आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड इट इज़ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी फॉर यू कि पहले आपका 30 दिन का साइकिल आ रहा था, अब अचानक से 18 दिन का हो गया है, एंड इट्स वर्थवाइल टू स्पीक टू अ डॉक्टर. दे कैन हेल्प फिगर आउट वाई दैट इज़ हैपनिंग. ऐसे तो मतलब मैं चैप्टर लिख दूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है. Thank you, ma'am. Yes, sir. Regarding this PCOS, I'm a doctor. So some of the time this metformin in low dose is recommended. So do you recommend until the HbA1c, HbA1c is increased, or you don't recommend it? So for a lot of my patients, I've noticed they have gastric disturbances with metformin. तो I counsel the patient, I explain to them कि ये situation है, ये आपको help कर सकता है. If they are not open to metformin, then we give them Burbitol, which is the precursor to the metformin salt, and a lot of people find that good for them. I'm a huge fan of letting my patients decide their treatment for them. तो मैं options बता देती हूँ, जो वो prefer करते हैं उस हिसाब से हम करते हैं आगे. Thank you for all the questions. काफी सारे सवाल आ रहे हैं. हम सारे सवाल नहीं ले पाएंगे. I think we will be short on time. But do you have a mic? Okay, yeah. Good afternoon, ma'am. Birth control pills is a still taboo for a lot of people. So I would like to ask, does taking birth control pill affect future chances of getting pregnant? This is a one tangent I'm going to add to this. Firstly, birth control pills only act as long as you're taking them. To the extent कि अगर आपने अपने रेगुलर महीने में एक दिन की पिल मिस कर दी तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं उसी मंथ. So they're immediately reversible. The other thing to remember is there's a lot of misogyny in medicine, and we need to be cognizant of that. Birth control pills are the greatest feminist revolution that have hit the world in the past 50 years, I will tell you that. Stats देख लीजिए, birth control pills के बाद लड़कियाँ कॉलेज रह सकीं, लड़कियाँ जॉब पे रह सकीं, otherwise you were always, एक तलवार लटकी रहती थी सर के ऊपर कि प्रेग्नेंट हो जाएंगे. तो they are very, very useful, they are very, very helpful. Yes, there are side effects to them, but आजकल की जो नई जनरेशन की बर्थ कंट्रोल पिल्स आने लगी हैं उनमें बहुत लो डोज ऑफ हार्मोन्स होते हैं. दे डोंट इम्पैक्ट यू द वे द प्रीवियस वंस डिड. प्रीवियस वंस हैड हॉरेबल साइड इफेक्ट्स. येस. द सेकेंड थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि जैसे एंटीबायोटिक्स की बहुत कैटेगरी आती है ना, कोई एजिथ्रो खाता है, कोई सिप्लॉक्स खाता है, वैसे ही बर्थ कंट्रोल पिल्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और बहुत सारी स्ट्रेंथ्स आती हैं. तो जस्ट बिकॉज वन टाइप इज नॉट वर्किंग फॉर यू, आप ये एजिथ्रोमाइसिन आपको सूट नहीं करी तो आप ये नहीं बोलेंगे भाई सारी एंटीबायोटिक खराब, एंटीबायोटिक मुर्दाबाद. बट हम बर्थ कंट्रोल पिल में ये ज़रूर कर देते हैं. सो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस. इफ इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, प्लीज स्पीक टू योर डॉक्टर. इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल टूल इन पीपल हुज PCOS इज नॉट बीइंग मैनेज्ड बाय लाइफस्टाइल मेजर्स अलोन.
I have to say, this is the impact that you've created. यहाँ पे कुछ सवाल है जो शायद लोग पहले publicly तो बिल्कुल नहीं पूछ पाते, लेकिन अभी माइक मांग कर वो सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे. So that is quite an impact that you've created. So you've done a fantastic job. One more question I think we can take if there's another question. Hello, ma'am. Oh, there. I'm Yeah. Anamka. First of all, I'm your big fan and I followed you on every platform. And my question is about virginity. कि ये virginity है क्या? क्या ये एक social contrast है जिसे एक conservative mind के societies ने बनाया? ये है क्या? ये है क्या? That's a tough one. Please tell us. ये है तो एक सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. मतलब लड़कियों ही पे वर्जिनिटी का ठप्पा क्यों होता है? दी अदर थिंग इज कि लोग हाइमेन को वर्जिनिटी से इक्वेट करते हैं. लड़कियां टेट्रा पैक नहीं होती हैं. ऐसा नहीं होता है कि वो टेट्रा पैक फट गया तो अब आप एक्सपायर हो जाएगा आपका अंदर का दूध या ऐसा कुछ. हाइमेन जो होता है वो एक सील नहीं होता है. हाइमेन एक छन्नी की तरह होता है. एंड वो छन्नी होना बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि अगर वो छन्नी नहीं होगी तो आप सोचिए मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर कैसे निकलेगा. हाइमेन एक पतला सा टिश्यू होता है जिसमें बहुत ज़्यादा वैस्कुलैरिटी यानी बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं जो वजाइना के एंड पे होता है. जनरली हाइमेन के अंदर ऑलरेडी मतलब हम लोग जो मोस्ट कॉमनली हाइमेन का शेप देखते हैं वो एक रबर बैंड की तरह होता है ऑलमोस्ट. उसमें बीच में एक छेद मिलेगा आपको. अगर छेद बड़ा सा नहीं मिलेगा तो छोटे छोटे छेद ज़रूर मिलेंगे. Almost 2/3 of women, almost 1/3 of women say that they did not bleed when they had sex for the first time. If you are sufficiently aroused, there's a good likelihood that you may not bleed. तो काफ़ी सारे feminist interpretations ये हैं कि hymen टूटना was more forceful or when people were very young, which used to happen in the past. बहुत कम उम्र पे शादी हो जाती थी. तो आप क्या इसमें विश्वास करना चाहते हैं वो आपका व्यक्तिगत निर्णय है. मेडिकली वर्जिनिटी एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो हम मेडिकली बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं ऐसे. Thank you, ma'am. All right. Thank you so much. You're a very interactive, very participative audience. बहुत सारे सवाल हो गए. You can follow her on all social media platforms. DM her, ask her the questions. एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी. One health practice you wish that more people would adopt. Using condoms. Condoms are the cheapest, best intervention you can use for your sexual health, for every kind of sexual act, and most importantly, please say bye to your sutta. It is the single best thing you can do for your life overall, for your bank balance, for your health, for your reproductive health, हर तरह से. Just say bye to sutta and also alcohol, but most importantly sutta. So no smoking is the best approach. And reduce your alcohol. Reduce the amount of alcohol. No alcohol. Yeah. Yeah, okay. All right, tampons, pads, menstrual cups. If you had to rate them. It's like saying कि आपको is Thai food best or Indian food best or I don't know Malaysian food best. They are pros and cons to each product. Whatever fits best for you, use that. Unbiased opinion, menstrual cups. Thank you so much, Dr. Tanaya, for your time. Thank you for answering all the questions. आप इनको social media platform पर follow कर सकते हैं. She in fact has a book, Everything Nobody Tells You About Your Body. Please get that book, read it. You'll get to know so much about yourself. Thank you so much for being a part of this session and the impact that you've created. Thank you so much.